Sine 7 pi by 2 plus pi by 6. What will be 7 pi by 6? Sorry, 7 pi by 2. 7 pi by 2. 630 degree. 2 pi. 3 pi plus pi by 2. 3 pi, that means this is 2 pi. Then this is again, this is 3 pi. And then pi by 2. Then pi by 2. That means it is same as 3 pi by. सही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 3 pi plus pi by 2 is 7 pi by 2. इसका मतलब है इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, इससे प्लस pi by 6. Okay, so this is a convergent axis. This is a convergent axis, and we are landing in the fourth quadrant. We are landing in the fourth quadrant. Okay, this is a theta. In Sir, fourth, कैसे हो? Can you explain it again? beta, this complete circle is 2 pi. Okay, then again adding it to 3 pi, it will be 3 pi. We can write 7 pi by 2 as 3 pi plus pi by 2. It will be 7 pi by 2. सही है कि नहीं? हाँ sir. ठीक है? This is 7 pi by 2. Clear है कि नहीं? So 7 pi by 2 means one circle complete, then again half circle complete, then again plus pi by 2 we will reach to 7 pi by 2. So 7 pi by 2 is this, same as 3 pi by 2. So 3 pi by 2 plus pi by 6 is same as 7 pi by 2 plus pi by 6. We are landing in the fourth quadrant. In fourth quadrant sign is negative. Add sugar to coffee. So sign is negative. So conversion will take place. So cos theta will be cos. It will be minus root 3 by 2. Okay. Is it matching with anyone? किसी का मैच कर रहा है मेरे साथ? हाँ sir. ठीक है. Yes sir, मेरा भी मैच कर रहा है. बहुत Yes sir. Now cos 8 pi by 2. अगर आप if you are taking it like a pi by 2 तो आपका गलत हो जाएगा. It is cos 4 pi. It is cos 4 pi minus pi by 6. So 4 pi means you have completed 2 revolutions. Okay, one complete revolution, then again one complete revolution. It will be 4 pi. It will be 4 pi. 4 pi का मतलब है एक सर्कल के दो चक्कर काट लिए. ठीक है. So 4 pi minus pi by 6 minus theta. You are landing in the fourth quadrant. In fourth quadrant, add sugar to coffee. In fourth quadrant, cos is positive. This is theta. So it will become plus cos pi by 6. Okay. So answer will be root 3 by. Clear है कि नहीं? Is it clear? बोलो भाई क्लियर है? कोई डाउट तो पूछ सकते हो अभी भी. सर समझ लिया. समझा? Sir, could you repeat? बेटा 8 pi by 2 you can write 4 pi. 4 pi means you have completed two rounds of a circle. In one round you will complete 2 pi, in two round you will complete 4 pi. So 4 pi minus pi by 6. 4 pi minus pi by 6, that means you will land in the fourth quadrant. In fourth quadrant cos will be positive, so it will be plus cos pi by 6. Okay. पहले तो ये देखो कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट दिस विल बी प्लस, और 2 पाई पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इससे प्लस माइनस में ओनली साइन विल चेंज. सो कॉस विल रिमेन इन द कॉस, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, सो यू विल टेक द पॉजिटिव साइन. ओके, क्लियर? Okay sir. बताओ. ठीक है. नाउ tan 10 pi, what will be tan 10 pi? It will be 5 राउंड है ना, 5 सर्किल के 5 राउंड मार लिए गए. So it will be like tan 10 pi plus theta, और theta is 0, so it is tan 0, है ना. It is tan 0. tan 0 कितना होता है? 0 ही होता है ना. Is it clear?
36 पाई का मतलब कितना हो गया कि सर्कल के कितने राउंड वाले? 12 राउंड। कितने? 12 राउंड। आए कहां पे? वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम यहां, यहीं से स्टार्ट। हाँ Can you explain the third question again? बेटा, थर्ड क्वेश्चन मींस यू हैव कंप्लीटेड 5 राउंड ऑफ अ सर्कल, so that means 1 2 3 4 5. now again you have starting with 0 0 आ गया ना अंकल यहाँ पे। हाँ sir, thank you. फोर्थ वन cos 36 pi plus pi by 3. so 36 pi means अगेन आप कहाँ पे आ चुके हो? यहीं पे आ चुके हो। so 0 plus pi by 3 you will land in the first quadrant. pi by 3 तो सिंपल सा है, cos pi by 3 it will be 1 by 2. किसका सारे के सारे ऑप्शंस मैच कर गए? सारे के सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। किसी का ऐसा है जिसके सारे आंसर्स मैच किए हों? एनीवन? सर मेरा। बहुत अच्छा, ठीक है। मेरा। बताओ, मुश्किल है बिल्कुल जरा सा भी? नो सर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे, है ना, क्वाइट इजी, बहुत आसान होता है, ठीक है। सर ये थर्ड वाला जो था इसमें tan pi plus theta कैसे आ गया सर? थीटा हमने क्यों लाया? थीटा 0 लिया है हमने, 0। tan pi को you can write, tan pi को you can write tan pi plus 0. ओके, एंड 10 को भी फिर हमने फॉरवर्ड बात करके 5 into 2 किया है, राइट? tan pi means you have completed 5 round of a circle. Okay? Done beta? Now we will write some identities. कुछ identities. सर एक बार याद दिखा सकते हो? जल्दी देख लो। नोट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन जो आपने 10th से पढ़ा होगा कभी कभी, फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सबको पता है? यस। ओके। यस सर। सेकेंड वन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये शायद नहीं पता होगा। पता। पता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फोर्थ वन साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन, वही लिख दो, cos A sin, only sign will change. Fifth one is cos A plus B, it is cos A cos B minus sin A sin B. Next one is cos A minus B, it is cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। सिक्स्थ वन इज sin 2 थीटा। मैं उतनी आइडेंटिटीज नोट करूंगा सिर्फ जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी आपको आगे पढ़ाने। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। सर नंबरिंग 6 के बाद 7 आएगा ना? अच्छा हाँ, इसको सही कर लो, मुझे लगा कुछ और बता रही है। नंबरिंग तो सही कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतने ही आएंगे, ठीक है। ओनली 8 आइडेंटिटीज, ठीक है। सर 1 plus cos square theta equals to cosec square theta नहीं है? कौन सा बेटा? 1 plus cos square theta बेटा equals to cosec वो square सारी theta. आइडेंटिटीज इन दोनों आइडेंटिटीज से निकल जाती है, इसलिए मैंने नोट नहीं करूंगा वो, ओके। ठीक है। इसको यू कैन ऑल्सो राइट cos 2 थीटा को यू कैन ऑल्सो राइट
cos square theta को you can write 1 minus sin square theta. So you can also write 1 minus sin square theta minus sin square theta or 1 minus 2 sin square theta. ठीक है, और you can write sin square theta को you can write 1 minus cos square theta. So it will become 2 cos square theta minus 1. दोनों चीजें आ सकती हैं. ठीक है, इसको सही कर लेना. सेकंड वाली मैंने गलती से कुछ लिख दिया था, उसको सही कर लेना. डन. आइडेंटिटीज डन. इतनी आइडेंटिटीज इट विल रिक्वायर्ड इन कैलकुलेशन. आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें दीज आइडेंटिटीज विल बी रिक्वायर्ड. सबसे ज्यादा किसका रिक्वायरमेंट होगा वो मैं बता देता हूँ. 7 8 का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा और 1 और 2 का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. 3 4 5 6 जो है वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन 1 2 एंड 7 8 का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, ओके, क्लियर बेटा. एंड कन्वर्जन्स जो पीछे पढ़ाए थे. नेक्स्ट टॉपिक. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. सो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक इज, वैसे आज कितने बच्चे कम हैं देखें. 62. आई थिंक 4 5 ना, 4 5 स्टूडेंट्स आर. सर 7 8 नहीं है. हाँ सर 8 बच्चे. सर 73 है स्ट्रेंथ. सर सर 73 है टोटल स्ट्रेंथ. खाली 73 75 रहते हैं. अच्छा 75 रहते हैं. हाँ हाँ, सर, ये- मतलब टोटल में हमारे टीम में 87 लोग हैं. अच्छा 4-5 टीचर्स को निकाल के भी मतलब अराउंड 80 तो होते ही होंगे. 80 या फिर 79 तो फिर 77. आगे का टॉपिक ये पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं ये बताओ. उनका मिस हो जाएगा, पता नहीं सर. फिर वो रोएंगे. पता नहीं सर, आप डिसीजन लो. सर शायद डाउट मैं तो चल रहा है इसलिए देखो, ज्वाइन नहीं किया. अगर डाउट्स हैं आपके पास, डाउट्स हैं ये बताओ. डाउट्स है तुम लोगों के पास? कुछ डाउट्स पेंडिंग है? नो सर. कुछ भी नहीं है ना पूछने को? नो सर. तो करेंगे क्या क्लास में? या तो क्लास छोड़नी सर- पड़ेगी. सर पढ़ाई दो जाने दो सर. नहीं फिर वो बच्चे बहुत दिक्कत देंगे, है ना. सर क्योंकि ऑप्शनल क्लास है ना, ज्यादा लोग आते नहीं है. क्योंकि दिस सर इज बैकलॉग ऑफिशियली सर बैकलॉग अगर होगी इसके बाद तो पढ़ा दो. अगर बैकलॉग नहीं होगी तो मत पढ़ाओ फिर. क्या बैकलॉग नहीं होगी? नो बैकलॉग. हाँ तो हाँ तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन ही उठा लेते हैं. ठीक है, तब तक कुछ क्वेश्चंस कर लो. मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हीं को सॉल्व कर लो. एक मिनट वेट करना. सर इसके बाद अब क्या पढ़ाओगे वैसे? इसके बाद वी विल स्टार्ट लॉगरिथम, है ना. लॉग का एक सीरीज है छोटा सा, बस वही देखेंगे. क्योंकि अगर 10 बच्चों से ज़्यादा एब्सेंट है ना तो नहीं हो सकता. वो रोने लग जाएंगे और फिर वो बोलेंगे बैक सर ने जो डाउट क्लास में थ्योरी पढ़ा दिया. सर 10 तो नहीं 15 तो होंगे ही एटलीस्ट. हाँ तो फिर रहने ही दो, इतना रिस्क नहीं लेंगे ना. फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा रहेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी को कर लो. वेट करना. थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ.
विजिबल में नहीं आ रही, तो फट गया है पूरा ना। एक बेटा वेट करना थोड़ा सा। कुछ कटा तो नहीं है, इफ तक कटा है ना। ये 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लें, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1.6454 into 21 मींस क्या आएगा इसका? ये भी कुछ अलग टाइप का ही है, देख लो वहां पे क्या है, इससे थोड़ा सा पता लगेगा। इस तरीके से भी कुछ पूछा जा सकता है। इंटू नहीं लिखा है, वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कुछ मतलब है। इंटू नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कुछ मतलब है। तो चलो इसको आप वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे थोड़े से अजीब से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो इन ब्रैकेट दैट इज समटाइम एरर को ऐसे भी लिखते हैं इन ब्रैकेट। अब एरर कितना होगा, दैट विल बी द लास्ट टू, अगर 2 डिजिट का है सो द लास्ट 2 डेसिमल प्लेस, सो इट विल बी 1.6454, बट इट विल अप टू द 4 डेसिमल। देखो कहां तक जा रहा है, 4 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है ना, सो इट विल बी लाइक दिस। सो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। लैब में व्हेन यू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, उसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, 21 in bracket, that means 21 is the error up to the maximum decimal place allowing the number में कितना maximum decimal place है, that is the 4 decimal place, it is 0.6454, तो लास्ट में यहाँ तक जाएगा। तो ये भी एक टाइप का रहता है ना। ऑल तो वैसे आता नहीं है एग्जाम में जल्दी, लेकिन इन केस नीट को पूछना होगा तो पूछ सकता है, मर्ज करके एग्जाम हो रहा है, सो इट कैन आस्क एनीथिंग, है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है इस समय। थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको एज अ काइंड ऑफ थ्योरी पार्ट में डालो कि ऐसे भी होता है। 99% ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 मुझे लगता है आप लोग कर लोगे अच्छे से, है ना। इसको करके बताओ कितना आ रहा है। थर्ड वन राइट, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 बोथ ऑफ देम। ओके ओके। किसी का क्या आया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? एनी ऑफ यू? किसी का भी? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर।
इसके बाद ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे, आसान क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया 2 का बेटा, किसी का भी आया? सर सी वाला, हाँ सी, सी, सी डी, विच वन? सी, सी फॉर कैट ना? यस सर। और किसी का आया कुछ? सी सीम्स टू बी करेक्ट, लग रहा है सही है। सर मुझे भी सी आया। सी आया? हाँ सर। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन समझ लेना, अब देखते हैं क्या सही है गलत है, पता नहीं। सबने ट्राई कर लिया? सबने ट्राई कर लिया अच्छे से? चलो एक काम करो, बाकी बच्चे थर्ड वाला भी ट्राई कर लें। स्टिल आई एम गिविंग यू सम मोर मिनट्स, है ना, 1-2 मिनट और ले लो ताकि सबके सब आंसर एक बार ट्राई कर लें। क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद वी विल टेक द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग।